Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन जो है वो देखने जा रहे हैं ग्राफ पे। मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्लॉट द लाइंस ऑन द ग्राफ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस Exercise 3.1 from third chapter, pair of linear equation in two variables. So let's see the first question of this exercise. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So, let's solve this. Now check the condition which they have mentioned in the question. That is 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो condition जो दी है वो condition है 7 साल पहले. 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. और condition 3 है 3 साल बाद. लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी प्रेजेंट एज के बारे में बोला नहीं गया है. If you don't know the present age, we can't find the age before 7 years and age after 3 years. तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेजेंट एज. हम यहीं पे गलती कर देते हैं. हम सोचते ही नहीं है कि प्रेजेंट एज कैसे लेनी है. इमीडिएटली हम जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है वो कंडीशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग. तो इसके लिए हमें सपोज करनी है प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब and his daughter, because without present age we can't find the age before 7 years and after 3 years. So let's suppose that let Aftab's present age is equal to x years and his daughter's present age is equal to y years. So आफ्ताब का प्रेजेंटेज हमने सपोज किया x years. I will write this x over here. आफ्ताब present age is x years and his daughter's present age is y years. ये हो गया प्रेजेंट एज. अभी कंडीशन हमें प्रेजेंट एज में नहीं लिखनी है. कंडीशन इज गिवन अबाउट द 7 years before. So let's write as per the condition before 7 years. Let's say this is case 1. There are two conditions. So for first condition we are supposing it as case 1 and then we will solve for case 2. So in the case 1 it is mentioned that 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Means Altaf age. Now present age of Altaf is x. 7 साल पहले का एज निकालना है तो 7 माइनस कर दो. बाद में का एज निकालना है तो उसमें हमें करनी होती है प्लस. सो प्रेजेंट एज इज मेंशन दैट x years. सो बिफोर 7 years आफ्ताब्स एज बिफोर 7 years आफ्ताब्स एज is equal to x minus 7 years and daughter's age, डॉटर का प्रेजेंट एज अगर y है तो 7 साल पहले उसका एज होना चाहिए y माइनस 7 years. नाउ लेट्स पुट इट इन द कंडीशन. अभी कंडीशन क्या दिए है? 7 साल पहले आफ्ताब का एज उसके डॉटर के एज के 7 टाइम्स था. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी कैन राइट इट एज Aftab's age is equal to 7 times of daughter's age. This condition was for before 7 years. 7 साल पहले के लिए ये कंडीशन है. That is Aftab's age is equal to 7 times of daughter's age. Now let's replace the values in it. आफ्ताब का एज x माइनस 7 था 7 साल पहले.
अभी ये कंडीशन लिखने के बाद यहाँ भी हम बहुत बार गलती करते हैं कि जो आफ्ताब का एज 7 टाइम्स डॉटर्स एज है, यहाँ पे गलती से हम प्रेजेंट एजेस लिख देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। इसीलिए याद से हमें यही वैल्यूज यहाँ पे चूज करनी है जो 7 years बिफोर थी। सो आफ्ताब्स एज था 7 years बिफोर, दैट इज x minus 7 is equal to 7 times of daughter's age, that is 7 into daughter's age y minus 7। ये भी लेना है 7 साल पहले का एज डॉटर का। Now let's open the bracket. X minus 7 is equal to, when we open the bracket, each term of the bracket will get multiplied by its outer term. So बाहर है 7 के साथ हर एक टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 7 into y 7y minus 7 into 7 49। Now to write it in the equation form हमें क्या करना है, सभी इक्वेशन एक साइड, वेरिएबल टर्म एक साइड में लेनी है। तो x माइनस 7y, जब कभी भी आप कोई भी नंबर एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। सो दिस प्लस 7y इट विल बिकम माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7। माइनस 49 प्लस 7, एक माइनस है एक प्लस है। इंटीजर के रूल्स ऑलरेडी मैंने इंटीजर के रूल्स आपको बताए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अगर आपको वो रूल ठीक से याद नहीं है या पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैंने दे रखा है। सो माइनस 49 प्लस 7 ये होता है माइनस 42। x माइनस 7y। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देन अभी एक टेबल फॉर्म करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमें टेबल फॉर्म करना है। तो वो टेबल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करनी है, इसमें से y या फिर x कोई सा भी एक वेरिएबल एक साइड में रख लीजिए और बाकी के सभी दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। सो मॉडिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस 42। व्हेन वी शिफ्ट दिस माइनस 7y टू अदर साइड इट विल बिकम प्लस 7y। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। नाउ in this equation we can write this equation as this way or we can write this way, that is x is equal to minus 42 plus 7y. Now let's find the values for the table. Now these are the equation, that is x is equal to minus 7y is equal to minus 42। इसको modify करके हमने किया है x is equal to minus 42 plus 7y। Now we'll check for values when y is equal to 5। तो अभी इस इक्वेशन में हमें y रिप्लेस करना है। नाउ सी, y रिप्लेस करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आई हैव चोजन दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 5। आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कौन सा नंबर ले। आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इवन 0 भी ले सकते हैं, कोई फ्रैक्शन नंबर भी वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। यू चूज एनी 3 वैल्यूज बाय योर ओन। आप जो चाहते हैं ऐसे 3 वैल्यूज आपको चूज करनी है। So when y is equal to 5, I have chosen y is equal to 5. Then अभी इस इक्वेशन में y की जगह पे हमें रिप्लेस करनी है 5। इक्वेशन है माइनस 42 प्लस 7y, माइनस 42 एज इट इज प्लस 7 इंटू, कुछ साइन नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, y की जगह पे रिप्लेस करनी है 5। Then we get it as minus 42 plus 7 5 are 35 minus 42 plus 35 in एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, दोनों की होती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आती है 7, साइन देना है ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर है माइनस 42। सो इसीलिए आंसर को आती है माइनस की साइन। सो व्हेन y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू मिल गई हमें 7। नाउ लेट्स फाइंड सेकेंड वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 6। जब y की वैल्यू हमने 6 ली, in that case we get x is equal to minus 42 plus 7 into y के जगह पे रिप्लेस करना है 6। so minus 42 plus 7 6 जा 42, minus 42 plus 42 ये हो जाता है 0 and we get value of x 0। now let's go for third value। so when y is equal to 7, in that case let's check what will be the value for x।
-42 plus 7y, just replace the value of y in it, plus 7 into 7 minus 42 plus 7 7s are 49 माइनस 42 प्लस 49, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, दोनों की करनी है सब्ट्रैक्शन और आंसर को साइन देना है ग्रेटर नंबर का। इनकी सब्ट्रैक्शन होती है 7, ग्रेटर नंबर है 49, इसलिए आंसर को मिलेगा हमारे प्लस साइन। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 7 व्हेन y इज इक्वल टू 7 we found that x is equal to 7. So now we got the value of x and y. So write the solution table. Solution table for equation x minus 7y is equal to minus 42 is x and y. अभी हमें यहाँ पे लिखनी है x and y coordinates. When y was 5, that time we got value for x is minus 7. When y was 6, that time we got value for x is 0. When y was 7, we got value for x is 7. So let's write the coordinate then, x coordinate and y coordinate. Minus 7, 5, 0, 6 and 7, 7. So ये हो गए हमारे x and y coordinates and these are the point coordinates for the points. तो अभी हमें ये points प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन मिला है उसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। सो इक्वेशन था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और 3 पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे -7, 5, 0, 6 and 7, 7. So let's plot the graph for it. So ये रही अपनी x and y axis. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस। हमने उसे नेम किया है x, x डैश, y, y डैश। नाउ ये जो 0 है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दैट इज x एक्सिस पे, 0 के राइट साइड में नंबर्स जो है वो नंबर्स होंगे पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव नंबर्स। देन y एक्सिस पे 0 के ऊपर होंगे पूरे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के नीचे होंगे पूरे नेगेटिव नंबर्स। सो अभी ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है -7, 5। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है हमें मिले हैं x कोऑर्डिनेट -7 एंड y कोऑर्डिनेट 5। सो -7, 5 मीन्स x एक्सिस पे हमें वो पॉइंट मिलेगा -7 पे। सो x एक्सिस पे हमें लेनी है -7। वी कैन सी दैट हियर इज द -7 ऑन द x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस इट इज 5। 5 कौन सा है? पॉजिटिव 5। तो ये है पॉजिटिव 5। तो वो जो पॉइंट है अभी वो पॉइंट हमें मिलेगा इस तरह से, दैट इज -7, 5। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, है ना? बहुत इजी। जस्ट आपको देखना है कि उसकी x कोऑर्डिनेट क्या है और उसकी y कोऑर्डिनेट क्या है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कहीं भी मतलब यहाँ पे -7 यहाँ पे है तो हम ये पॉइंट एग्जैक्ट जहाँ पे x और y एक्सिस का इंटरसेक्शन आता है वहां पे हम ये पॉइंट नहीं ड्रॉ करते। गलती से हम ये पॉइंट इधर उधर कहीं तो ड्रॉ कर देते हैं और फिर हमारी पॉइंट हो जाती है रॉन्ग। इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जब x एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वही स्ट्रेट लाइन हमें कंसिडर करनी है और y एक्सिस की स्ट्रेट लाइन, और जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहां पे हमें मिलती है अपनी रिक्वायर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स ड्रॉ फॉर द सेकेंड पॉइंट। नाउ चेक सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे हमें? 0 and 6। अभी ऐसे जब पॉइंट्स हम देखते हैं बस इतना याद रखना है कि जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट मिलता है y एक्सिस पे, और उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट मिलता है हमें x एक्सिस पे। हमेशा ऐसे पॉइंट्स में हमें कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस जो मैंने रूल बताया है वही फॉलो कीजिए। x एक्सिस 0 है तो बस वो पॉइंट हमें मिलना है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे है अपनी x एक्सिस पे 0
यहां से लेके हमें जाना है y एक्सिस 6 तक। अभी 6 पॉजिटिव है, इसीलिए 6 है ऊपर के साइड में, इसीलिए हम यहां तक जाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट दैट इज विच शोज द कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 6। तो ये हो गया अपना पॉइंट 0 एंड 6। अभी ड्रॉ करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7 7, मींस x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 7 है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव 7 है। तब सबसे पहले हमें कहाँ ढूंढना है वो पॉइंट? x एक्सिस पे। जब हम x एक्सिस पे जाएंगे, x एक्सिस पे पॉजिटिव 7, ये रहा पॉजिटिव 7, देन y एक्सिस पे पॉजिटिव 7, तो यहां से ये पॉइंट यहां तक जाएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन जाना है आपको 7 से लेके, और फिर y एक्सिस पे जो 7 है वहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये, और जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहां पे हमें मिलता है अपना पॉइंट दैट इज 7, 7. So let's draw the point that is which shows the coordinate 7, 7. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इस तरह से हमने 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं। अभी ये जो 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, हमें इन तीनों में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपका पॉइंट जो है एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ड्रॉ करते वक्त 2 पॉइंट तो एक लाइन में से पास हो रहे हैं लेकिन थर्ड पॉइंट नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? फिर से आपका सॉल्यूशन चेक करना है, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट हमें आ रहे हैं तो फॉर श्योर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में से पास होनी चाहिए। अगर आपके पॉइंट्स पास नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वहां पे कैलकुलेशन में आपने कहीं तो गलती कर दी है। फिर आपको फिर से वो कैलकुलेशन चेक करनी है, फिर करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट्स ड्रॉ करना है। जब कभी भी आप किसी भी लाइन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो फॉर श्योर वो पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आने चाहिए। सो अपने जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं तीनों भी एक ही लाइन में है, मतलब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो लाइन इन तीनों पॉइंट में से पास हो सकती है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन विच विल पास थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ये हो गई अपनी लाइन। फिर ये लाइन जो है इसका इक्वेशन लिखना आपको बहुत जरूरी है। इक्वेशन है x minus 7y is equal to -42. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। और एक बहुत जरूरी बात, ये टिप आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम पॉइंट ज्वाइन करते हैं, हम बहुत बार गलती कहाँ कर देते हैं कि हम पहले 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं और फिर तीसरी ज्वाइन करते हैं। इसमें हो क्या सकता है कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आएगी, कहीं तो उस लाइन में कर्व रह जाएगा, और जो कि बहुत गलत आंसर हो सकता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा बड़ी स्केल यूज कीजिए, छोटी वाली स्केल नहीं यूज करनी है। ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए बड़ी वाली स्केल यूज कीजिए, और एक ही साथ आपको ये तीनों भी पॉइंट मैच करने हैं इस तरह से कि एक ही लाइन इन तीनों में से पास हो सके। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। अभी देखते हैं सेकेंड कंडीशन। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So अभी एजेस जो लेनी है, हमें एजेस लेनी है 3 साल बाद। सो केस 2 इज फॉर आफ्टर 3 years. After 3 years, Aftab's age, it would be x plus 3. प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद जो एज निकालनी है उसमें +3 कर दो। देन डॉटर्स एज, we get it as y plus 3. डॉटर का प्रेजेंट एज अगर x है, सॉरी डॉटर का प्रेजेंट एज अगर y है तो उसमें 3 ऐड कर दी, y plus 3 ये हो गया 3 साल बाद का एज। देन नाउ लेट्स पुट इट इन द कंडीशन। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी है हमें क्वेश्चन में कि 3 साल बाद आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब्स एज वो डॉटर के एज के 3 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। सो अभी आफ्ताब का एज 3 साल बाद पहले हमें क्या मिला था? x plus 3. जस्ट रिप्लेस दिस। देन 3 इंटू डॉटर्स का एज 3 साल बाद है y plus 3. देन
In the next step, we will open the bracket. X plus 3, while opening the bracket, each term will get multiplied by the outer term. So x plus 3 will remain as it is because nothing is there, means there is 1 outside the bracket. When we multiply any bracket by 1, all terms will remain as it is. ये जो bracket है वो 3 से multiply हो रहा है. So 3 into y, we get it as 3y plus 3 3s are 9. अभी सब वेरिएबल टर्म्स एक साइड में कर दीजिए. x 3y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3y is equal to 9 minus 3, that is we get it as 6. So we got equation x minus 3y is equal to 6. x minus 3y is equal to 6. अभी इसमें हमें मॉडिफिकेशन करनी है. Let's take 3y to other side. It will become 6 plus 3y. So this is the second equation which we found. We can represent this way or we can represent this way. अभी इसके लिए भी हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है. 3 वैल्यू रिप्लेस करनी है कौन सी भी, और देन y x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है. मीन्स y की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, you will get the value of x. Now let's replace the value of y in it. When y is equal to -2, when we get y is equal to -2, in that case value for x is equal to 6 plus 3y, that is 6 plus 3 into y की जगह पे रिप्लेस करनी है -2. we get 6 plus 3 minus 2, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है -6 and x is equal to 0. 6 minus 6 0. So when y is equal to -2, we got x is equal to 0. Then let's suppose when y is equal to 0, अभी y की वैल्यू 0 सपोज करते हैं. Then x is equal to 6 plus 3y, 6 plus 3 into 0. When we multiply any number by 0, its value will become 0 and we get x is equal to 6. तो जब y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू हमें मिली 6. Now replace third value of it. Now replace third value of it, that is y is equal to 1. When we replace y is equal to 1, let's write the equation. X is equal to 6 plus 3y, then 6 plus 3 into 1, that is 6 plus 3, we get x is equal to 9. So when y is equal to 1, in that case we found that x is equal to 9. Now let's write the solution table for it. So the solution table is, we are writing the solution table for second equation, that is x minus 3y is equal to 6. So the solution table is x, y, x comma y. Now check the values of x and y. When y was -2, x we found it at 0. When y was 0, we found x 6. When y is equal to 1, we got x is 9. So let's write the coordinates. 0, -2, 6, 0, 9, 1. So we found the solution table for both the equation. Now as per the question, we need to show it graphically. So to plot these lines on the graph paper, let's check the graph for it. Now let's check how to draw the line for the second equation. अपना second equation है x minus 3y is equal to 6. अभी इस equation के लिए हमने coordinates जो है हर एक 3 पॉइंट के लिए हमने coordinates निकाले थे. फर्स्ट coordinate था 0, -2, 6, 0 and 9, 1. 0, -2, 6, 0, 9, 1. तो ये 3 पॉइंट के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे. सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स नाउ. तो पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0, -2. अभी देखिए, इसे कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे मैंने बताया, सेम ट्रिक यूज करनी है हमें. जब कभी भी
हमें x कोऑर्डिनेट 0 मिले तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे होता है। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2। आप देख सकते हैं -2 जो है वो 0 के नीचे है, तो आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे -2 दैट इज ऑन द y एक्सिस। तो आपका पॉइंट बस हमें यही मिलेगा। सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट दैट इज 0, -2। ये मिल गया हमें y एक्सिस पे पॉइंट। अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 0 कि जिसका भी एक्सिस, जिस भी कोऑर्डिनेट का एक्सिस 0 होता है उसे छोड़ दीजिए और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है 6। 6 किसका कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पे। सो 6, 0 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे हमें मिलता है। मतलब ये पॉइंट जो है वो हमें x एक्सिस पे मिलेगा। सो x एक्सिस पे 6, आप देख सकते हैं x एक्सिस पे 6 यहाँ पे है और y पे 0 है, मतलब ये पॉइंट जो है वो पॉइंट हमें x एक्सिस पे मिलेगा। सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट दैट इज 6, 0। तो ये हो गई हमारी सेकेंड पॉइंट। नाउ लेट्स ड्रॉ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 1। अभी x एक्सिस पे 9 और y एक्सिस पे 1। आप देख सकते हैं x एक्सिस पे 9 जो है वो यहाँ पे है, x एक्सिस पे 9 और y एक्सिस पे 1। y एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, दैट इज पॉजिटिव। तो हमें ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? x एक्सिस से 9 और y एक्सिस पे 1, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे होगा हमारा पॉइंट 9, 1। सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट। ये है हमारा पॉइंट 9, 1। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया थर्ड पॉइंट भी। अभी जैसे हमने पहले लाइन के लिए किया था सेम थिंग हमें यहाँ भी करनी है। हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली है। सो बस आप करना क्या है, आपको स्केल रख दीजिए और स्केल में इन तीनों लाइन को इस तरह से मैच कीजिए कि ये एक ही लाइन इन तीनों में से पास हो। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन है x - 3y = 6। तो बिना भूले आपको लाइन के इक्वेशंस लिखने हैं। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था x - 7y = -42 और सेकेंड लाइन का इक्वेशन x - 3y = 6। तो पहले जरूरी क्या है, आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। और वंस यू डू द कैलकुलेशन करेक्ट, उसके बाद आपको वो पॉइंट ठीक से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करनी है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।